प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। झाड़ग्राम में हुए एक दर्दनाक घटना ने सबको स्तब्ध कर दिया है, जिसका संबंध आसनसोल से भी है। जंगल महल बटालियन के सब इंस्पेक्टर जयदीप चैटर्जी ने गुरुवार तड़के अपने किराए के मकान में अपनी सर्विस रिवॉल्वर से पहले अपने माता पिता शंपा चैटर्जी और देवव्रत चैटर्जी की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की। गोली चलने की आवाज सुनकर पड़ोसी और मकान मालिक मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। जयदेव को गंभीर हालत में झाड़ग्राम जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में रेफर किया गया। उनके माता पिता को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि जयदीप मानसिक रूप से परेशान थे। जयदीप का पैतृक घर आसनसोल के दुमहानी गांव में है। उनके मामा का घर बाराबनी थाना क्षेत्र के दुमहानी में है। पड़ोसियों ने बताया कि जयदीप के माता पिता बीमार थे और 1 महीने पहले ही वे इलाज के बाद उन्हें झाड़ग्राम ले गए थे। इस घटना से उनके मामा के परिवार और पूरे इलाके में शोक का माहौल है। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। দেখুন, আমরা এখন পর্যন্ত যতটুকু বাইরের ইনফরমেশন পেয়েছি সেইটুকুতেই আমরা এখন ঝাড়গ্রাম যেতে বলেছে। ঝাড়গ্রামে উনি থাকতেন, সেই জায়গাতে আমরা গাড়ি নিয়ে অলরেডি যাচ্ছি। হ্যাঁ, আমরা বড়োবাবুর কাছে খবরটা পাওয়ার পর যোগাযোগ করি। বড়োবাবু বললেন যে আপনাদের আধার কার্ড ভোটার কার্ড নিয়ে পরে ঝাড়গ্রাম যান। আর ছেলেটা বলছে সিরিয়াস আছে, ছেলেটাকে এসএসকেএম হসপিটালে নিয়ে গেছি। ওখানেও আমরা একজন রিলেটিভকে পাঠিয়েছি। এনার ছেলে মানে ভাই একটাই, যে বোনটা আর কি আছে তার ভাই একটাই বা মামা একটাই, ওই জন্য সে যাচ্ছে ঝাড়গ্রাম। আর একজন রিলেটিভ উনিও কলকাতাতে চাকরিরত। জয়দীপ কি মা বাবাকে কি অবস্থা আছে, মা বাবার কি করবেছেন? কিছু আমার কাছে কিছু ইনফরমেশন নেই। পুলিশ কি বললো? না, এখানে থাকতেন নেই, উনি কর্মসূত্রে বাইরেই থাকতেন। হ্যাঁ, 1 মাস আগে ওর মা বাবা এখানে এসেছিল। জয়দীপের মা বাবা শরীর খারাপ ছিল, এখানে ট্রিটমেন্ট করায় সুস্থ অবস্থাতে এবং পুজোর হিসাবে নিয়ে গেছে। এবং ওর মা বলেছে যে ছেলেটার আমার অসুবিধা হবে, ছেলে একটাই, তো রান্নাবান্না করার জন্য জয়দীপ নিজে এসেছিল নিতে? জয়দীপ গাড়ি নিয়ে নিজে এসছে, ওই মা বাবাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই একটা ঘটনা ঘটিয়ে দিল, কি মানে কতটা করছেন? এটা ধরুন আমরা কিছু বলতে পারবো না, এখান থেকে বসে কিছু বলা যাবে না যতক্ষণ না মানে জয়দীপের ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারছি না। অত ভালো ছেলেও হয় না, ছেলের কোনো নেশা নাই, ভাঙ নাই, কিছু নাই, খুবই ভালো ছেলে, জেন্টেল ছেলে। आसनसोल में दुर्गा पूजा के बाद होने वाले कार्निवल की तैयारियों के लिए आसनसोल नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से भगत सिंह मोड़ से पुलिस लाइन तक क्षेत्र का दौरा किया और आयोजन की रूपरेखा तैयार की। इस दौरान डीसीपी ध्रुवदास, एसीपी विश्वजीत नस्कर, डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, मेयर परिषद सदस्य गुरुदास चैटर्जी आदि मौजूद थे। मेयर अभिजीत घटक ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार अधिक भीड़ की उम्मीद है, इसलिए तैयारी उसी अनुसार की जा रही है। उन्होंने कहा कि कार्निवल में भाग लेने वाली पूजा कमेटियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। हालांकि कलाकारों के चयन पर बाद में फैसला होगा। प्रशासन समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दे रहा है ताकि सभी कमेटियां निर्धारित समय में अपने कार्यक्रम समाप्त करें।
এবছরও কার্নিভেল হতে চলেছে, তাই সেই কার্নিভেলের ব্যবস্থাপনা দেখার জন্য আজকে একটা যৌথ ইন্সপেকশন হচ্ছে এখানে। পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রয়েছে এবং আমাদের কর্পোরেশনের সকলে রয়েছে, যাতে সুষ্ঠুভাবে এই কার্নিভেলটা করা যায় এবং যাতে আসানসোলের মানুষ এখানে যেভাবে উৎসাহিতভাবে তারা এখানে উপস্থিত থাকেন তাদেরকে দেখার সুযোগ করে দেওয়া। সেই কারণেই আজকে এই ইন্সপেকশন হচ্ছে এই এলাকাটা, যে কিভাবে কোথায় কি করতে হবে, কোথায় স্টেজ হবে, কোথায় প্রোগ্রাম হবে, কোথায় পারফরমেন্স হবে, এইসব জিনিসগুলো খুঁটিনাটি বিষয়গুলো নিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রথমবারের থেকে দ্বিতীয়বারে বেশি ভিড় হচ্ছে, তো তার থেকে আশা করছি যে এবছর আরো বেশি ভিড় হবে। হ্যাঁ, গত বছরের থেকে এবছর আরো 3-4টে নতুন কমিটি আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছে, তারা ইচ্ছা প্রকাশ করেছে এই কার্নিভেলে অংশগ্রহণ করার জন্য। তো আমাদের আশা যে এবার হয়তো আরো 3-4টে পুজো কমিটি আরো বাড়বে। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के ट्रैफिक विभाग ने सड़क हादसों को कम करने के लिए भगत सिंह मोड़ पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान डीसीपी ट्रैफिक पीवीजी सतीश, एसीपी ट्रैफिक विश्वजीत साहा, इंद्रजीत दे सहित अन्य अधिकारियों और सिविक वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने और सुरक्षित वाहन परिचालन को प्रोत्साहित करने के लिए मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि हादसों को शून्य करने का लक्ष्य है। उन्होंने 2 पहिया वाहन चालकों से हेलमेट, 4 पहिया वाहन चालकों से सीट बेल्ट का उपयोग करने, शराब पीकर या मोबाइल इस्तेमाल करते हुए गाड़ी ना चलाने और ट्रैफिक सिग्नल का पालन करने की अपील की। ट्रैक्टरों से होने वाली दुर्घटनाओं के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई और चालान किया जाता है। আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করছি মানুষের কাছে বার্তা নিয়ে যেতে, যে হেলমেট আমরা যে দেখছি গত দুর্ঘটনা যেভাবে আমি বলেছি কি আমরা সব থেকে আগে আমরা অ্যাটেন্ড করি। ইভেন হসপিটালের অ্যাম্বুলেন্স আসার আগেও ট্রাফিকের কর্মীরা থাকে রোডের উপরে। তো আমরা দেখছি যদি হেলমেট না থাকে আপনার 90% চান্স অফ ফ্যাটালিটি বেড়ে যায়। মানে যদি কোনো পথ দুর্ঘটনা হলেও হেলমেট থাকলে মানুষ বেঁচে যেতে পারে। 90% চান্স আমি বলছি, যেহেতু আমরা সব দিনই প্রত্যেক দিনই আমরা দেখছি হেলমেট না থাকলে সিরিয়াস হেড ইঞ্জুরি হলে হয়তো মানুষ আর থাকবে না, মেরে যায়, না হলে একদম জীবিত লাশ, যেটা বলে কি জিন্দা লাশের মতো ও বাড়িতে পড়ে থাকবে, ফ্যামিলির উপরে একটা বোঝার মতো থাকবে। তো আমরা সবাইকে এটাই অ্যাপিল করছি, দয়া করে হেলমেট পরে যান। আর বাকি আমাদের যে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা সবসময় অ্যাপিল করতে থাকি, আরও চেষ্টা করছি আমরা। सालानपुर थाना पुलिस ने तेंदुआ में 17 घंटे तक रोड जाम के बाद हुए हंगामे की घटना के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम मनोज महतो, श्यामल महतो और धुंदा महतो है।
जो सभी देंदुआ के श्रीरामपुर गांव के निवासी हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार इन तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की 15 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों को आसनसोल अदालत में पेश किया गया। पुलिस को संदेह है कि इस घटना में कुछ अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं और उनकी तलाश के लिए सालानपुर थाना पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है। गौरतलब है कि मंगलवार की रात सड़क हादसे में LIC एजेंट के बाद मुआवजे की मांग को लेकर देंदुआ रात से लेकर बुधवार दोपहर तक सड़क जाम कर आंदोलन किया जा रहा था। इसे हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इस दौरान कई पुलिसकर्मी जख्मी भी हो गए थे। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रानीगंज थाना के पंजाबी मोड़ फाड़ी की ओर से आयोजित 7 दिवसीय कार्यक्रम के तीसरे दिन रानीगंज के रोनई फुटबॉल मैदान में अंडर 13 एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल आयोजित हुआ। सांसद की पत्नी पूनम सिन्हा ने पुरस्कार वितरण में हिस्सा लिया। टूर्नामेंट में रानीगंज की 5 टीमें अशोक संघ, NKC काजुड़ा, SSCA क्रिकेट एकेडमी, स्पोर्ट्स एकेडमी और निमचा क्रिकेट एकेडमी शामिल थी। फाइनल में अशोक संघ और SSCA क्रिकेट एकेडमी आमने सामने थी। अशोक संघ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 ओवर में 4 विकेट खोकर 41 रन बनाए। जवाब में SSCA ने 4 विकेट खोकर 27 रन बनाए। अशोक संघ ने 14 रन से जीत हासिल की। मैन ऑफ द मैच विशाल गोप, बेस्ट बॉलर सौमिक गोप और मैन ऑफ द सीरीज जिशान शेख बने। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमर पाड़ा अमर समाधान योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रत्येक बूथ को 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां लोग अपने मोहल्ले की समस्याओं को प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रख रहे हैं। इन समस्याओं का पंजीकरण कर उनका समाधान किया जाएगा। बाराबनी विधानसभा के अल्लाडी और सालानपुर इलाकों में 4 बूथों पर ऐसे शिविर आयोजित किए गए। विधायक और आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय ने शिविरों का निरीक्षण किया और सुनिश्चित किया कि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को अपनी छोटी छोटी समस्याएं दर्ज कराने और उनकी त्वरित समाधान कराने का अवसर प्रदान करती है। আজকে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান, যেটা পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিটি পাড়াতে মানুষের যে ছোট ছোট কাজ আছে সেই কাজগুলো যাতে সামনাসামনি মানে অফিসারদের সামনে, প্রশাসনিক লোকদের সামনে যাতে বলে কাজগুলো করাতে পারে তার ব্যবস্থা। আজকে আমাদের আল্লাডি পঞ্চায়েতের দুটো বুথে হলো আর আমাদের সালানপুর পঞ্চায়েতের 2 বুথে হলো। সব ছোট ছোট কাজ, কোথাও লাইট, কোথাও ড্রেন, কোথাও পুকুরঘাট, আইসিডিএস সেন্টার, স্কুল, এইসব কাজগুলো সব তুলে ধরেছে এবং যত তাড়াতাড়ি সময় কাজগুলো করা যায় তার চেষ্টা। सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आसनसोल नॉर्थ ट्रैफिक गार्ड ने शीतला गांव में एक अनूठा अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने महिलाओं को हेलमेट के महत्व के बारे में समझाने के लिए एक मिट्टी के कलश का सहारा लिया। अभियान के तहत महिलाओं से उनके सिर पर पानी से भरा कलश रखने और फिर उसे तोड़ने के लिए कहा गया। कलश टूटने के बाद उनसे पूछा गया कि क्या ये फिर से जुड़ सकता है। इस प्रतीकात्मक प्रदर्शन के माध्यम से पुलिस ने ये संदेश दिया कि बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर सिर में लगी चोट भी उसी तरह से अस्थायी हो सकती है और जानलेवा साबित हो सकती है। आसनसोल नॉर्थ ट्रैफिक गार्ड के प्रभारी मोहम्मद अशरफुल इस्लाम ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को जागरूक करना था, ताकि वे अपने घर के पुरुष सदस्य को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि महिलाओं की जागरूकता से समाज में बड़ा बदलाव आ सकता है।
क्या आप सीने में दर्द, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान हैं? अब चिंता छोड़े, संपर्क करें एलेक्सर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक। मिलिए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। आसनसोल वैशाली पार्क फतेहपुर स्थित क्लिनिक में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 से 8 बजे तक। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538 पर। धन्यवाद। पश्चिम बर्धमान जिले के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसरों ने जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में एक विज्ञापन सौंपा। अंडाल की कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर चैताली राय ने बताया कि पांसकुड़ा की हेल्थ ऑफिसर सुष्मिता सामंत के अत्यधिक कार्यभार और मानसिक दबाव के कारण मृत्यु हो गई। उन्होंने सुष्मिता की मौत के लिए इंसाफ की मांग की और कहा कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसरों पर अत्यधिक काम और टारगेट का बोझ डाला जा रहा है, जिससे वे मरीजों की सेवा और लैपटॉप पर काम के बीच संतुलन नहीं बना पा रहे। उच्च अधिकारियों के गलत व्यवहार की भी शिकायत की गई। चैताली ने स्पष्ट किया कि वे परीक्षा देकर नौकरी पाए हैं, न कि किसी की मेहरबानी से। जब तक सुष्मिता को इंसाफ और उनकी मांगे पूरी नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। আজকে আমাদের মেইন উদ্দেশ্য হলো আমাদের সিএইচও কমিউনিটি হেলথ অফিসার পাঁশকুড়া সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সুস্মিতা সামন্ত আজকে আমাদের মধ্যে আর নেই। সে মানসিক নির্যাতন সহ্য করতে না পারে আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু এই অন্যায় অত্যাচারটা আমরা সহ্য করব না। তা সুস্মিতা একজন নারী, আমরাও একজন নারী, আমরা চাই তার বিচার। সে কেন আমাদেরকে ছেড়ে এভাবে তাকে চলে যেতে হলো, কেন সে মানসিক নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হলো, তারই বিচার করতে এসেছি আমরা। এভাবে তো চলতে পারে না। আমরা যারা স্বাস্থ্য পরিষেবার মেরুদণ্ড, তাদেরকে নিয়ে পুরো স্বাস্থ্য পরিষেবা চলছে, অথচ আমাদেরকেই এভাবে মানসিক নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হচ্ছে কেন? সেই উত্তরগুলো পাওয়ার জন্যই আমাদের আজ ডেপুটেশন। আর কি কি বিষয়ে ডেপুটেশন দিলেন? সমস্ত ব্যাপারে আমাদের সিএইচও পোস্টের প্রত্যেকটা ব্যাপারই আছে, ছুটি থেকে শুরু করে আমাদের পরিষেবা দেওয়া থেকে শুরু করে আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে মেডিসিন না পাওয়া থেকে শুরু করে সমস্ত ব্যাপারে আমাদের মানসিক নির্যাতনে ভুগছি। আমাদের ম্যান পাওয়ার নেই। আমাদের প্রত্যেকটা কাজ হচ্ছে আমরা পরিষেবা দিতে এসেছি। আমাদের বেসটা হলো নার্সিং কেয়ার, আমরা রোগীর পরিষেবা দেব। এখানে সেটা সম্পূর্ণ উঠে গিয়ে হয়ে গেছে অনলাইন পোর্টাল। সমস্ত অনলাইন পোর্টালগুলো আর টার্গেট করে দেওয়া হচ্ছে। একটা পরিষেবা কি কখনো টার্গেটে হয়? একদম আছে যে আমাকে এতটাই পেশেন্ট আসতে হবে, আমাকে এতটাই কাজ করতে হবে। এটা কি কোথাও কোনো পরিষেবা? बाराबनी के नूनी ग्राम पंचायत इलाके में विधायक तथा मेयर विधान उपाध्याय ने एक शेड का उद्घाटन किया। इस मौके पर बाराबनी पंचायत समिति अध्यक्ष असित सिंह, नूनी ग्राम पंचायत प्रधान माधव तिवारी सहित अन्य स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इस बारे में माधव तिवारी ने कहा कि 1.5 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन आज विधायक और पंचायत समिति अध्यक्ष ने इसका किया। गुरुवार को आसनसोल के पायल इन में डाक समावेश 2025 के तहत वरिष्ठ डाक अधीक्षक कार्यालय ने ग्राहक सम्मेलन आयोजित किया। इसमें पश्चिम बर्धमान जिले से सैकड़ों ग्राहकों ने हिस्सा लिया। खनन एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड की स्वर्ण जयंती पर डाक टिकट जारी किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन अतिरिक्त जिला शासक जनरल सुभाषिनी ने किया। वरिष्ठ डाक अधीक्षक अंशुमान ने बताया कि देश के 1.65 लाख डाकघरों को ग्राहकों की बेहतर सेवा के लिए ऑनलाइन किया जा रहा है। असहाय ग्राहकों के लिए घर पर जमा राशि पहुंचाने की सुविधा भी शुरू की गई है। इंडिया पोस्टल पेमेंट्स बैंक के प्रबंधक राजीव रंजन राम ने होम लोन, कार लोन जैसी नई योजनाओं की जानकारी दी। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव शंभुनाथ झा ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बताया। सक्षम लघु और मध्यम उद्यम के अधिकारी उत्तम लाहा, आसनसोल चैम्बर के उपाध्यक्ष मुकेश तौदी, आसनसोल के वरिष्ठ डाकपाल बिमल राय,
रानीगंज चैम्बर के अध्यक्ष रोहित खैतान, सलाहकार अरुण भारती आदि उपस्थित थे। आज हम लोगों ने डाक समावेश 2025 प्रोग्राम किया है। यह एक सेमिनार कम कस्टमर मीट है, जहां पे हम लोग कस्टमर्स के अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाएं, उनका रिक्वायरमेंट्स को जानेंगे। प्लस इस डाक समावेश 2025 के माध्यम से हम लोग जो है अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जो हम लोग कस्टमर्स को ऑफर करते हैं इसकी जानकारी देंगे। ये एक मंच है जहाँ पे हमने MSME है, डाक निर्यात केंद्र है और भी बहुत तरह का सेगमेंट है जिसके कस्टमर्स ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर जो हैं और जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उन सबको जो है बुलाया है। यहाँ पे इंडियन रेलवेज के प्रतिनिधि आए हैं, प्रशासन से लोग आए हैं, MSME से लोग आए हैं और उन सबको हम अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में बताएंगे और उनके भी अपेक्षाओं को जानेंगे, उनके रिक्वायरमेंट्स को जानेंगे। यहाँ पर हम लोग 4-5 MOU साइन करने वाले हैं। एक डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी के साथ हमारा MOU होने वाला है। उसके अलावा 3-4 और इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं जिनके साथ हमारा MOU साइन होगा। उसके बाद हम लोग एक यहाँ स्पेशल कवर भी रिलीज़ करेंगे जो आपका MA माइनिंग एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड है, उसका 50 साल हुआ है, उसको हम लोग कमेमोरेट करेंगे। डाक समावेश इन सब का एक मंच है। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।